again glue because it came out. And this here, I'm going to cut out another square. And this is the other type of flower, not the same one. And cut it. Now let's cut it. See, these two are it. And the another one, we can take a small one also, like this. We need 4 more like that, okay? Basically 1 more because 2 are there and this one cut it. You can see this is the 3rd one. And now let's cut the final. Line them properly. Don't worry if it's like not same in size, because it really doesn't matter in this one, because in this one automatically all of them will be cut and also it does not matter. So now, but the smallest ones you need to keep aside, because that one we need to cut it in like different shapes. So that's why all these 3, take it and align and now cut. And see, cut it. Sweep all this away. This we have now 3, and this one, as I told you, to cut in a different shapes. This one you can take it, and now this one basically there are those who are at same, but this one you need to cut in a shape, in a proper flower shape. This one came out like this, and now we need to take this like one and cut out from here. And you can see these 2 petals, these 2, and cut from here. Here. Yes, this is what you have to do. And now take glue, apply here. Same as that one only, but you see, in the first one you need to cut out 1 petal, second one 2, third one 3. Also, basically it need to be in a descending order. Okay, but you must notice that when the next one should be smaller. Like this should be smaller than this. Then only it works. From here you need to press it so that it is stuck. See, now it looks like a flower, right? You can see with the other ones like this, and I open, and at this time I need to cut out 3. Now this time let's cut first. We'll do the sticking later.
this. Now we'll apply glue over here. Friends, let's quickly make this type of flowers. I already have these 4 cut-out pieces, and then rearrange them and align them. These are. See, now I'll cut them again. So friends, now I'll show you how to make a different kind of flower. So that will basically be a flower pot. See, as you can see, I have colored this to make in a bouquet, a pot of flower, and this is the flower. So, but there's a way, and I'll teach you how to make another like this, and also this one also. So come on, let's start. हाय एवरीवन, आई एम मीतू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। वीडियो का जो पहला पार्ट है वो आप देख ही चुके हैं। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है, बिकॉज़ यस्टरडे ना हंशिक उठ चुका था और वो सारी वीडियो हमें तभी बंद करनी पड़ी। आप जानते ही होंगे, छोटे बच्चे जिनके घरों में होते हैं वो कुछ नहीं करने देते हैं। कुल मिलाकर ये 2 दिन में मेरे बेटे ने फ्लावर्स तैयार किए, और वैसे भी इन चीज़ों में देखिए टाइम तो लगता ही है। ये नहीं है कि एक दिन में हो जाता है, और ये भी नहीं है कि हम पूरा दिन ही ये चीज़ें करते रहेंगे, बिकॉज़ और भी तो घर के काम होते हैं। और वैसे भी ना ये काम तब वो करता है जब उसको ना खाली टाइम होता है। और यहाँ पर ना मेरा छोटा वाला बेटा भी उसकी थोड़ी सी हेल्प करा रहा था, हालांकि वो बहुत तंग कर रहा था। बार बार बड़ा बेटा मुझे शिकायत कर रहा था कि मम्मा प्लीज़ इसको ले लो, ये मुझे कुछ नहीं करने दे रहा है। इसी वजह से ना मुझे इसकी वॉइस भी ऑफ़ करनी पड़ी, बिकॉज़ ये ना आप लोगों को बहुत अच्छे से ना समझाना चाह रहा था। आपने देखा भी होगा, ये बहुत अच्छे से समझाना चाहता है कि अगर कोई चीज़ बना रहे हों तो वो चीज़ समझ में भी आनी चाहिए। बट मुझे इतनी लंबी वीडियो एडिट करने में ना सच में बहुत प्रॉब्लम आ रहा था, और आप भी समझ सकते हैं इतना लंबा वीडियो कौन देखेगा, बिकॉज़ आजकल तो छोटी ही वीडियो कोई नहीं देखता, तो बड़ी वीडियो देखने का तो कोई मतलब ही नहीं है। बट जहाँ है जैसे पॉसिबल हो सकता है मैंने वहाँ पर नॉर्मल वीडियो डाली है, और जहाँ पर मुझे लगता है कि हाँ फास्ट मोशन में मैं कर सकती हूँ वहाँ मैंने कर दिया है। वैसे मेरा बेटा काफ़ी मुझसे शिकायत भी कर रहा था कि मम्मा आपने तो मेरी सारी ही वीडियो इतनी काट दी है, तो फ़ायदा क्या। तो मैं उसको यही समझा रही थी कि बेटा अगर मैं आपकी इतनी लॉन्ग वीडियो डालूंगी तो कोई फ़ायदा नहीं है, और कोई भी उसको नहीं देखने वाला है। बट बच्चे हैं, बच्चों को कौन समझाए, बच्चे ऐसे ही होते हैं। बट हाँ, मैं एक बात ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ, जिन लोगों के भी बच्चे इस तरह की एक्टिविटीज़ करना पसंद करते हैं तो आपको भी उनका सपोर्ट पूरा करना चाहिए। ये नहीं है कि उन्हें डांट दें। कुछ पेरेंट्स मैंने देखे हैं कि इन सब चीज़ों को ना वो फालतू की चीज़ें समझते हैं, बट नहीं डियर, ये फालतू की चीज़ें नहीं होती हैं। जितनी ज़रूरी बच्चों के लिए पढ़ाई, खाना, खेलना, कूदना होता है, उतना ही ज़रूरी उनको एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कराना भी होता है। हालांकि मैं नहीं बोलती हूँ उससे इस तरह की चीज़ें कि तुम करो, बट उसका मन होता है वो खुद से ही करता है, और ऐसा भी नहीं है कि वो रोज़ करता है। जब भी उसको ना फ्री टाइम मिलता है या फिर वो बोर हो जाता है, तब वो कुछ भी अपने दिमाग से करने लगता है। आप पूरा इसको वीडियो को देखना, उसने कितने सुंदर फ्लावर बनाए हैं। हालांकि उसकी मैंने बीच में थोड़ी सी हेल्प कर दी थी जहाँ जहाँ उसे मेरी हेल्प की ज़रूरत थी, और मेरा फ्लावर तो पता ही नहीं कहाँ चला गया। मैंने इतने प्यार से उसको बनाया था, और सीरियसली मैंने पूरे घर में ढूंढ लिया, मुझे वो फ्लावर ही नहीं मिला। बाद में मुझे मेरे बड़े बेटे ने बताया कि मम्मा वो तो हंशिक ने बिल्कुल बेकार बनाकर डस्टबिन में डाल दिया है। मैंने कहा अरे वाह, मेरी मेहनत पर भी पानी डाल दिया। लेकिन चलो कोई नहीं, बच्चे तो होते ही ऐसे हैं। आप देख भी सकते हैं फर्स्ट क्लिप पे हमने कैसे फ्लावर बनाए थे, और ये सेकंड डे की क्लिप है। ये मेरा बेटे ने अपने आप ही बनाए हैं डिफरेंट शेप के, और उसको बहुत मज़ा आता है इन सब चीज़ों में। और वो हर बार ना, वैसे उसको साइंस की एक्टिविटी ज़्यादा पसंद है, ये चीज़ उसको कम पसंद है। साइंस की एक्टिविटी वो जब करेगा तो
मैं आपको वो भी शूट करके ज़रूर दिखाऊंगी। बिकॉज़ बच्चों में अगर कोई हुनर है ना तो हमें उसको पूरा सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो किसी भी चीज़ का हुनर हो। ज़रूरी नहीं है कि एक आर्ट क्राफ्ट ही चीज़ है, बाकी की चीज़ें भी बहुत कुछ है। और सच बताएं, मैं इन चीज़ों को ना पहले बहुत किया करती थी, बट समय के साथ साथ सब चीज़ें बदल जाती हैं। आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। जब फैमिली हो जाती हैं, बच्चे हो जाते हैं, तो हम लोग ना सिर्फ उसी में रह जाते हैं कि हाँ बच्चे हैं, हस्बैंड है, ऑफिस जाना है उनको, उनका लंच पैक करना है, बच्चों का स्टडी है, हम सब ना अपनी तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते हैं कि हाँ हमारे अंदर क्या क्वालिटी है और हम उसको कैसे इम्प्रूव करें। और जब भी मैं अपने बच्चों को ना इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हुए देखती हूँ, सच में गाइस मुझे अपना पूरा चाइल्डहुड याद आ जाता है कि मैं किस तरह से चीज़ों को बनाया करती थी, किस तरह से एंजॉय किया करती थी। और सच बताऊँ, मैंने अपना बचपन जिया है, जैसे जीना चाहिए ना उस तरह से मैंने अपना बचपन जिया है। बट जो आजकल के बच्चे हैं ना, वो अपना बचपन बिल्कुल भी नहीं जी पा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि मैं किस और इशारा कर रही हूँ, मीन्स कोविड की तरफ। कोविड जब से आया ना, बच्चों की लाइफ एकदम से ना रुक सी गई है। ना ही तो खेलना मिल पा रहा है, ना ही कहीं घूमना मिल पा रहा है। देखिए बड़े तो ना कर लेते हैं जैसे भी करते हैं, लेकिन बच्चों का ना बहुत मुश्किल हो जाता है घर में टाइम काटना। इसीलिए मैं अपने बच्चों को हमेशा बिज़ी रखती हूँ, जिससे कि उनका माइंड भी ख़राब ना हो और जिससे कि उनका दिल भी ना दुखे। मैं हमेशा ना उनको खुश रखने के लिए कुछ अच्छी चीज़ें खाने के लिए बना देती हूँ, जो सभी माएँ बनाती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ही बनाती हूँ, सभी माएँ बनाती हैं। बट मैं ना कोशिश ये करती हूँ कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मैं टाइम दे पाऊँ, क्योंकि आप समझ सकते हैं हस्बैंड लोग तो ऑफिस में होते हैं, तो वो लोग तो ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं। और गाइस एक चीज़ ना मैं शेयर ज़रूर करना चाहूँगी। यहाँ तो मैंने ऐसा कभी देखा है नहीं, बट हाँ इंडिया में मैंने देखा है कुछ माएँ, मैं सभी मदर्स की बात नहीं कर रही हूँ, बट कुछ मदर्स मैंने ऐसी देखी हैं जो ना अपने घर का जल्दी से काम फिनिश करती हैं, बहुत जल्दी काम उनका घर का हो जाता है। देन उसके बाद ना वो पूरा दिन फ्री हो जाती हैं, और ना ही तो वो अपने बच्चों को ध्यान देती हैं कि हाँ बच्चे क्या कर रहे हैं। बस इधर उधर का उनको रहता है कि उसके घर में क्या है, उसके घर में क्या हो रहा है। तो गाइज़ मैं तो आपसे एक ही बात बोलना चाहूँगी, आप इधर उधर की बजाय ना अपने बच्चों में ध्यान दीजिए। आपके बच्चे इतने खुश होंगे ना, आप उनका साथ दीजिए हर चीज़ में। अगर वो अच्छी चीज़ कर रहे हैं, गलत चीज़ों में तो वैसे भी नहीं देना चाहिए। अगर वो कोई एक्टिविटीज़ करना चाहता है, वो नहीं भी करना चाहते हैं, तो आप उनसे पूछिएगा कि क्या तुम्हारा मन है, क्या करना चाहते हो। जब भी मेरे बच्चे बोर होते हैं, मैं तो ऐसे ही पूछती हूँ क्या करने का मन है, कुछ खाने का मन है, कहीं घूमने का मन है। घूमने का मन होता है तो मैं घर में ही उनके साथ कुछ गेम खेलने बैठ जाती हूँ या फिर कुछ और एक्टिविटीज़ करने बैठ जाती हूँ। और थोड़ा बहुत मैं बच्चों को घर का भी काम सिखाती हूँ, पता नहीं कब क्या किसके काम आ जाए। चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि बेटियां ही सब कुछ काम करें, बेटों का भी पूरा अधिकार होता है और बेटियों का भी। तो बेटों को भी आप वही सिखाइए जो बेटियों को सिखाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बेटियां ही सब कुछ करेंगी, वो बात अलग है। मेरे हस्बैंड एक गिलास पानी भी नहीं उठा के किसी को देते हैं, तो भाई ऐसा मेरे बच्चों के साथ तो चलने वाला है नहीं। मैं तो अपने बच्चों को पूरा घर का काम सिखाने वाली हूँ और बहुत कुछ सिखा भी चुकी हूँ। और बहुत अच्छा भी लगता है जब बच्चे ना आपकी हेल्प करते हैं। और ये नहीं है कि वो हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, लेकिन छोटी छोटी हेल्प भी ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती हैं कई बार। जैसे कि सैलड काटना या डिश वॉशर को रिमूव करना या फिर डिश वॉशर लोड करना, छोटे छोटे बहुत सारे काम होते हैं। डस्टिंग ऑल्सो, इतने सारे घर के छोटे छोटे काम होते हैं जो बच्चे कर सकते हैं और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। तो यहाँ देखिए मेरे बेटे ने फ्लावर्स भी सारे बना लिए हैं। इसने 4 टाइप के फ्लावर बनाने सिखाए हैं इसमें, और ये बना रहा है फ्लावर पॉट। और फ्लावर पॉट के लिए इसने मुझसे ना एक कांच की बॉटल ली है, एक खाली बॉटल। मेरे पास वैसे कई रखी हुई हैं, लेकिन इनमें से एक मैंने इसको दे दी है। और गाइज एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, जितनी भी इसने चीज़ें बनाई हैं ना, उसमें से एक भी चीज़ ये ख़रीद कर नहीं लाया है। ये सब चीज़ें जितनी भी हैं पुरानी हैं, घर में पड़ी हुई थी, जो सामान बच जाता है ये उन चीज़ों से इसने बनाया है। तो आप भी इसी तरह से बना सकते हैं। आप
चीज़ों को ना फेंके ना, रीयूज़ कर सकते हैं किसी ना किसी फॉर्म में। आप ये देखिए इसने कितनी सारी ये कलरफुल पेपर थे ना, ये लास्ट ईयर के थे आई थिंक इसकी क्लास के, और इनका कुछ भी नहीं हुआ बिकॉज़ ऑनलाइन क्लास है तो जाना तो होता ही नहीं है, तो कुछ भी एक्टिविटीज़ भी नहीं हुई थी, तो इसके बहुत सारे पेपर ऐसे रखे हुए हैं। तो इसने सोचा कि क्यों ना कुछ बना लिया जाए, बिकॉज़ मुझे याद है इसने ना 2 साल पहले कुछ ऐसे ही फ्लावर्स बनाए थे और जो स्कूल में बनवाए गए थे और टीचर को वो बहुत पसंद आए थे, इसीलिए इसने दोबारा से फ्लावर बनाए हैं। बट इस बार मुझे याद है कुछ ये नए फ्लावर हैं, पिछली बार इसने ऐसे नहीं बनाए थे। अगर मे बी मेरे पास कोई पिक्चर होगी तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, बट मुझे नहीं लगता वो होगी बिकॉज़ वो ओल्ड फ़ोन में थी। लेकिन हाँ, इसने बहुत अच्छे फ्लावर बनाए थे 2 साल पहले भी, बट ये आज दूसरे टाइप के हैं और ये भी मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये देखिए इसने कितना सुंदर फ्लावर पॉट बनाया। देखिए बच्चा है, जैसा इसको आता है वैसा बना लिया। और यहाँ मेरा बेटा बोलने लगा कि मम्मा मेरे सारे फ्लावर डन हैं बट इनको लगाऊँ मैं कैसे। तो मैंने उसको एक आइडिया दिया कि एक डिस्पोजल वाला ग्लास लेना और उसमें मिट्टी को हमने डाल के, जो गमले में से मिट्टी निकाली उसमें डाल दी, दैन मैंने इस तरह से फ्लावर पॉट बना दिया जैसा भी मुझे समझ में आया। और इन फ्लावर्स को मैंने ना एक रबर बैंड से ना बांध दिया जिससे कि ये इधर उधर ना हिले, और ये बन गया ना एक बुके, और बहुत अच्छे लग रहे थे सच में। मैंने इनको घर में फिर लगा दिया था। और ये फ्लावर्स जो छोटे छोटे इसने फर्स्ट वीडियो में बनाए थे ना, वो इस तरह से प्लेट में लगा दिए हैं। बट दूसरी प्लेट ना हंशिक ने तोड़ दी, तो दूसरा हमने नहीं बनाया, बट दूसरा हम बना लेंगे। तो ये 2 हिस्सों में बन जाएगा। कुछ इस तरह से पूरे फ्लावर्स बने थे, आप देख सकते हैं। अब ऐसे ना हमें एक पोर्शन और बनाना है, मीन्स 2 फ्लावर पॉट और बनाने हैं इसी तरह के, और एक प्लेट और बनानी है। तो इस तरह से ना वो पेयर में बन जाएंगी और आप इसको ना अपने मेन डोर पर भी लगा सकते हैं, किसी वॉल पर भी लगा सकते हैं, और इन फ्लावर पॉट को आप डाइनिंग टेबल पर या फिर कहीं पर भी आप सुटेबल समझे वहाँ रख सकते हैं। और सच में देखने में भी देखिए कितने सुंदर लगते हैं। और घर में ही अपनी लेफ़्ट ओवर चीज़ों से आप इस तरह से बना सकते हैं। आप भी इसी तरह से अपने घर को सजा सकते हैं। देखिए बच्चे ने बनाई है, ये मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है, बट जैसी भी बनी है मेरे लिए तो ये बहुत अच्छी है। क्योंकि जब अपने बच्चे कुछ बनाते हैं ना, तो सच में माँ बाप को सबसे ज़्यादा खुशी होती है, और आप भी उनकी इसी तरह से हेल्प कर सकते हैं बनाने में किसी भी चीज़ में। और गाइस कभी भी ना बच्चों को डीमोटिवेट मत कीजिएगा। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो दूसरे के बच्चों को भी और अपने बच्चों को भी डीमोटिवेट करते हैं, तो आप ऐसा ना किया करें, क्योंकि ये बहुत गलत बात होती है। हमेशा बच्चों को, या अपने बच्चे हों चाहे वो किसी और के बच्चे हों, हमें मोटिवेट ही करना चाहिए, ना कि डीमोटिवेट करना चाहिए। आई होप आपको मेरे बेटे की ये थोड़ी सी चीज़ें बनाई हुई अच्छी लगी होंगी, और अच्छी लगी हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप भी अपने बच्चों के लिए ऐसी ही चीज़ें बनाने में उनकी हेल्प कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।